یہ کوشش کر رہے ہیں کل عدم ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے. کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی پہلی شرط ہتھیار ڈالنا ہے اور آپ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کر دیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس. کہا افغانستان اور وہاں پر کل عدم ٹی ٹی پی ایک حقیقت ہے. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا. اور پارلیمنٹ نے یہ اجازت دی تھی جب پارلیمنٹ کو بریف کیا گیا تھا تو ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان لوگوں کے ساتھ جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ واپس آنے اور لیگل فریم ورک میں آنے کو تیار ہیں. اس وقت یہ خیال تھا کہ اور نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاید اس سے جو ہے وہ کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ لوگ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے ود ان لیگل فریم ورک. وہ آئے واپس لیکن آ کے جو انہوں نے پھر رویہ اختیار کیا ہے یہ موجودہ جو رائز ہے یہ میری ذاتی رائے میں یہ اس کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں مہنگائی کا اعتراف. کہتے ہیں ملک میں مہنگائی عروج پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی کے چیلنج پر جلد قابو پا لیں گے. انتہائی مخدوش حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں مہنگائی کا اعتراف. آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا, آپ بھی دیکھیے. سڑک پر بھی خوراک پانی یا ادویات کو یہاں پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا اور یقیناً صوبائی حکومت جناب قدوس بزنجو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے اور ساتھ ایکٹنگ گورنر اور پوری حکومتی مشینری دن رات کام کر رہی تھی لیکن چیلنج اتنا بڑا تھا. مارکیٹ جلد بند کرنے کا اعلان تو ہو گیا, عمل درآمد کون کرائے گا؟ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں مارکیٹس اور شادی ہالز جلد بند کرنے کا فیصلہ تاجر برادری نے مسترد کر دیا. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت دکانیں رات 8:30 بجے بند کرنے کا فیصلہ خود کرے گی. حکومت کا ملک بھر میں مارکیٹ 8:30 شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ تاجر برادری نے مسترد کر دیا. پہلے روز ہی حکومتی احکامات نہ مانے گئے. کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی وفاق کے فیصلے پر عمل نہ ہوا. اسلام آباد میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند نہ ہو سکیں. تاحال اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی نہ بنایا جا سکا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی وفاقی دارالحکومت میں مارکیٹس کو 8:30 بجے بند کرنے کا کہا تھا لیکن اس کا باضابطہ کوئی نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں کیا گیا. اس لیے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مارکیٹس بند نہیں کروائی گئیں. ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کا کہنا ہے انتظامیہ کو کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا. پنجاب حکومت نے وفاق کا حکم ماننے سے ہی انکار کر دیا. لاہور کے چھوٹے تاجروں نے بازار جلدی بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا. 8 بجے ہم دکانیں بند کر کے کھائیں کہاں سے ہم, اس لیے برائے مہربانی ذرا آپ ہمارا ہیلپ کریں. کسٹمر کا زیادہ تر شام کو ہی نکلتے ہیں تو یہ بہت مسئلہ بن جائے گا کام کے لیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی خیال کرے ہمارا دکانداروں کا. آگے بالکل کسٹمر نہیں ہے ہمارے پاس. یہی ٹائم ہوتا ہے ہمارا کام کا اور وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 8:30 بجے بند کرے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یو پی ایس پہ صرف 2 لائٹیں چلا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لائٹ بھی کوئی نہیں ہے. فوٹو کاپی کا کام ہے ہمارا, آدھی سے زیادہ ہمارا کام پینڈنگ ہے. مہنگائی کی وجہ سے ویسے ہی عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, کسٹمر بہت کم ہے, اوپر سے 8:30 بجے کا ٹائم کر دیا ہے. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے پنجاب حکومت دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ خود کرے گی. صدر آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے مارکیٹیں رات 11 بجے سے پہلے بند نہیں کریں گے. آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے کہا عوام کا مزید پیٹ کاٹنے کی بجائے اشرافیہ اور مرات یافتہ طبقے سے قربانیاں حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. سرکاری لوگوں کی مفت بجلی اور پیٹرول سمیت تمام مرات ختم کی جائیں. ویلکم بیک. 11 جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لیا جائے. عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایات جس میں کہا گیا کہ جلد از جلد یعنی کہ 11 جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لیا جائے. آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم پنجاب کے اعتماد کے ووٹ پر سبطین خان, عثمان بزار, میاں اسلم اقبال اور دیگر کو ٹاسک دے دیے گئے. ارشد شریف قتل کیس جے آئی ٹی نے کینیا کے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور بیان حلفی
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमा कराती। रिपोर्ट 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। इससे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने कीनिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी होने के एतराज़ आयद किया था। अरशद शरीफ कत्ल केस में JIT ने कीनिया के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमा करा दिया। रिपोर्ट 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है और JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। इससे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी होने का एतराज़ आयद किया था। इब्तदाई पुलिस तफ्तीश में साबित हुआ है कि 3 हमलावरों ने इमरान खान पर हमला किया। लाहौर पे फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहते हैं कि 14 गोलियां जमीन पर एक जगह से बरामद की गई हैं। 9 गोलियां एक दूसरी जगह से मिली हैं। मिलने वाले 14 खोल 3 मुख्तलिफ असलहे के हैं। इमरान खान के गार्ड की जानिब से एक भी गोली नहीं चली। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और इनके साहबजादे अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित न हो सकी। FIA हुकाम का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिले दफ्तर कटने का फैसला किया गया है। तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल जी, FIA की तहकीकाती टीम ने तकरीबन 1.5-2 साल तक इस पर तहकीकात की। अब फैसला ये किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई है, जिस पर रिपोर्ट जो है तैयार कर ली गई है और मंजूरी दे के लिए वजारत दाखिला को FIA की तहकीकाती टीम ने एक लेटर भी लिख दिया। उसका जवाब जैसे ही आएगा तो उस केस को दफ्तर दाखिल कर दिया जाएगा। याद रहे कि FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन पर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के जुर्म पर बाकायदा तौर पे FIR भी दर्ज की थी और स्टेट बैंक समेत दीगर बैंकों से रिकॉर्ड भी हासिल किया गया था। अब फैसला किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, जिस पर इस केस को खारिज कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई है। तालिब फरीदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। MKM पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं। हल्का बंदियों के इशू पर मुतहदा की दूसरी जमातों को हमनवा बनाने की कोशिशें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द कुछ देर बाद इदारा नूर हक का दौरा करेगा। MKM का वफ्द जमात इस्लामी का एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत देगा। मुतहदा का वफ्द मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का दौरा भी करेगा। दूसरी तरफ PSP ने वर्कर्स का हंगामी इजलास आज शाम 7 बजे पाकिस्तान हाउस से मुत्तसिल शाहराह पर तलब कर लिया। कारकुनान से मुशावरत के बाद अहम फैसला साजी की जाएगी। अहम खबर आपको दें, MKM की सिफारिश पर तैनात किए गए 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटा दिया गया है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर MKM के तजवीज़ करदा कराची, शर्की, कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को बल्दियाती इलेक्शन तक ओहदे से हटा दिया है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे KM अब्बासी से। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MKM की सिफारिश पर 3 जो है एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे। उनमें DMC कोरंगी है और इसी तरह से DMC हैदराबाद और जो है इसी तरह से उनके ये MKM की जानिब से नाम दिए गए थे। 3 नाम जो के लगाए गए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 जो है 3 लेटर लिखे गए थे कि जो जब इंतखाबात जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उस दौरान कोई भी तकरीरी या तबादले नहीं हो सकते, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। ताहम आज बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद किया गया है। DMC शर्की के थे एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शकील, जिनका नोटिफिकेशन वापस लिया गया है। DMC कोरंगी के हैं मोहम्मद शरीफ, इनका भी नोटिफिकेशन वापस लिया गया। इसी तरह से DMC हैदराबाद में मोहम्मद फारूक से उनका भी जो है मुअत्तल कर दिया गया है नोटिफिकेशन। ताहम जो है अब पुराने ओहदों पर जो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर तैनात थे उनको बहाल कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए हैं। ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटर जो है MKM की। ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, आपने आगाह किया। वेलकम बैक। कराची में आटा 10 रुपए किलो मजीद महंगा कर दिया गया है। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 135 रुपए किलो की सतह पर आ गई, जबकि आम मार्केट में आटा 140 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर के मुताबिक ओपन मार्केट से 120 रुपए किलो पर गंदम खरीद रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने गंदम दरामद करने की इजाजत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाजत दी जाए तो आटा 100 रुपए किलो फरोख्त किया जा सकता है। कराची की 2 माह की जरूरत पूरी करने के लिए 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। सरकारी कोटे से फ्लावर मिल्स को माहाना सिर्फ 10,000 बोरी गंदम फराहम की जा रही है, जबकि माहाना 40 से 45,000 बोरी गंदम की जरूरत है।
लाहौर, शेखपुरा और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। शरकपुर, फारुखाबाद और जड़ावाला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए हैं। शिद्दत 4.1 बताई गई है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक लाहौर, शेखपुरा और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वफाकी हुकूमती तवानाई बचत प्रोग्राम का ऐलान किया है। पाकिस्तान में कितनी बिजली पैदा करने की सलाहियत है और आजकल बिजली की पैदावार कम क्यों है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान जितनी बिजली पैदा कर सकता है उससे बहुत कम बिजली पैदा की जा रही है। वजारत तवानाई ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 22,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है। पानी से बिजली की पैदावारी सलाहियत 10,000 मेगावाट है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,000 मेगावाट है। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 13,000 मेगावाट, कैप्टिव पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 2,643 मेगावाट है। पाकिस्तान में बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 39,760 मेगावाट है। बिजली की ज्यादा से ज्यादा मजमूई तलब 26,500 मेगावाट है। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स की खराबी बिजली की पैदावार में कमी का बायस है। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद पावर प्लांट्स 1 साल से फनी खराबी के बायस बंद है। कोयले के बिजली घर ईंधन में कमी की वजह से मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहे, जबकि गैस और LNG की सप्लाई में कमी की वजह से 50% बिजली पैदा नहीं हो रही। PSO सर्कुलर डेट 613 अरब रुपए हो चुका है, जिसके बायस फर्नेस ऑयल की दरामद में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक नीलम जहलम पन बिजली घर भी 6 माह से फनी खराबी की वजह से बंद है। तरबेला चौथा तौसीई मंसूबा फनी खराबी के बायस मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहा। आजकल भल सफाई के बायस डैम से पानी का अखराज ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से पन बिजली की पैदावार में 90% कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब से UN पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदे ने मुलाकात की है। मुलाकात में पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए बाहमी इश्तराक को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आबादी में बेहंगम इजाफा सेहत, तालीम और रोज़गार के मसाइल में इजाफे का बायस है। डॉक्टर लोई शबाना ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए मिसाली इक़दाम कर रही है। पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स की हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की मंजूर शुदा आसामियाँ भर्ती करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दिफा को मस्खरा करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर दिफा हमारी पुलिस और CTD को तनकीद कर रहे हैं। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उन पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला महमूद खान ने सवात में टूरिज़म पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, कबायली अवाम के साथ 100 अरब रुपये सालाना का वादा किया था, सिर्फ 5 अरब रुपये जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से है। वफाकी हुकूमत रजीम चेंज साजिश के तहत कायम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स नहीं दे रही। सूबे का हक मांग रहा हूँ, अगर नहीं दिया तो छीन कर लूँगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फजल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फजल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम और हमारी प्रोजेक्शंस हैं। We will, as I said, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of. We are working on that. It will be a combination of things and we are doing the day and night to work on that inshallah. इसके ऊपर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इकोनॉमी डिस्कस हुई है और पहले दिन एजेंडा ही वही था, लेकिन जो वहां से हैंड आउट ऑफिशियल आया है उसमें वो थोड़ा सा वो वेग है। वो लॉन्ग टर्म प्लान की तो बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें अपनी जगह पे। इमीडिएट जो एक सवाल आपने वहां पे रेज किया था कि जो अगर IMF में जाना तो आपको क्या करना है, उसका क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, हमारे सामने रास्ता क्या। सेकेंडली जो आप फरमा रहे हैं 30 जून 2023 बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आप कह रहे हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड आपके रिजर्व्स होंगे। आपने भी अनप्रेसिडेंटेड उस सेंस में नहीं रहना सर, आई मीन एज इन कंपैरिजन प्लीज लेट्स बी क्लियर। आपने भी 2 दफा बात की
चाइना से आपकी मुसलसल बात हो रही है, सऊदी अरब से हो रही है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ी सी वेग थी, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थी कि हमने पहले भी मदद की और आइंदा भी करेंगे। कोई अभी तक हमारे पास चीन और सऊदी अरेबिया से कंक्रीट कमिटमेंट्स हैं कि जब हम कहें, बिकॉज आपको भी पता है कि 2 दिन बाद फिर एक पेमेंट आ रही है, फिर अगले महीने आ रही है, तो डू यू हैव कंक्रीट कमिटमेंट कि जहां पे हम कहें नो वी आर कंफर्टेबल? देखिए, जाहिर है कि जो मैंने आपको बताया वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे, और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाअल्लाह। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप समेत जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज़्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। नंबर 1, हाउ, क्या उनकी लाइबिलिटीज ड्यू नहीं होती? They don't.